Arawan from SBS UET Texila Service as the Management Team Administration, and I am thrilled to be your host for today's enlightening webinar. Our speakers for today's webinar is Mrs. Ghulam Anila Shaheen. She has over 6 years experience in development sector and she had worked in over 5 countries in South Asia, Middle East and Europe. So, more than that, she is currently working as an entrepreneur and independent consultant and Erasmus Mundus mobility student. We are honored to have her today with us. Before embarking on the journey of knowledge, a moment for housekeeping. Kindly keep ensure your cameras are off, microphones are muted to minimize disruption, and in case of any queries, feel free to raise your hand and type the question in the WhatsApp group so we will address them later. Now, without any further delay, let's start the webinar. Over to you, Mrs. Ghulam Anila Shaheen. You can proceed, ma'am. Thank you very much. My name doesn't have Ghulam, so, and it's not Mrs. either. Thank you very much. ये presentation mode, can you turn it off, please? अस्सलाम वालेकुम मैम मैम हमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने हैं अगर हम वो ले लें तो उसके बाद टर्न ऑफ कर देंगे Okay, okay. Please आप screenshots ले लें क्योंकि then it's easier to talk to people, you know. ओके नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट 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 मैम यू कैन स्टार्ट Okay, thank you. Okay, now I can't see anything. So, can you go to speaker mode? Okay, जी at मैम least I can see myself. ठीक है. So, first of all, thank you very much, everyone, for joining. I'll keep it bilingual. So, I hope English, Urdu दोनों वैसे ही हमारी आदत है bilingual की. तो I hope it's easier for everyone. अगर language का मसला है तो you can always raise your hand and talk. I've been doing the presentation mode webinar for a long, long time, and I realized at the end, जो कि आपका basic information most के पास होता है, and basic information पे आप आप उसको Google भी कर सकते हैं, आप बहुत सारे YouTube videos भी देख सकते हैं, and but there are questions. So बहुत recently हमने एक webinar किया था जिसमें we didn't have time for Q&A, and especially then too many questions came. I had like 80 questions, 80 messages in my LinkedIn inbox, and it took me like almost 2 days to like respond to all the questions one by one. And then I realized it's very important कि आप लोग time निकाल के आए हैं, तो you must have something, आपको पता है कि process क्या होता है, application देनी है, research करना है, मैं उसको थोड़ा सा touch कर लूंगी, but think in your mind अभी से कि आप कोई specific question आपका हो जो आपको अगर मौका मिले to ask someone, जैसे someone who has done this before, जैसे मैंने किया है, या if you would meet someone else, तो आप उससे क्या पूछ लेते. तो I'll keep a lot of like a good chunk of time for Q&A, and it would be nice if I could see your faces so it's more conversational. I feel like I'm talking to people because there are 95 people, people here. It would be nice to have this conversation more organically. So after saying that, I am Anila. I am not Ghulam Anila. So, Anila Shaheen, I am from Gilgit Baltistan, Pakistan, mein, and I started my. I have studied from Khan Higher Secondary Gakuch, and wahan se then my first scholarship ever international was youth exchange and study program. जिसमें you apply in high school, you go to the US, you spend a year there in it.
high school, and then you come back. After that, I was one of those students, like जिनको पता था कि मुझे scholarship पे पढ़ना है. So when you are one of those students, you know that you don't have too many options, but you have a lot of options out there. So mera pehla criteria to go to university was I have to find, scholarship that will support my studies. That was my first and my top criteria. After completing high school, I got a chance to study in a fully funded, residential university in Bangladesh. 5 साल का scholarship था, and everything was covered, an American curriculum. It was really, really high quality studies. I went there. वहाँ से then I got a chance to go to South Korea, जहाँ पे it was a semester exchange. And I applied. I got into the program, but वहाँ पे ये हुआ कि I was not offered the scholarship. So when I was not offered the scholarship, and I really wanted to, avail the opportunity, so I had to find alternative options. So my alternative options could be, pay from your own pocket, reach out to someone who can sponsor you, and a lot of things that up, you can be creative. So I went with the crowdfunding. Crowdfunding तब अभी अभी start हो रहा था. अभी आजकल it's very mainstream, it's very famous, and it's one of the, most common ways of fundraising. So I went with that. I, made a video of who I am, told my story, and said I want to go to Korea. Why do I want to go to Korea, and how this will, change my life and help me make an impact and help me reach my goals. And वो वीडियो के मैंने कोई 100 टेक्स लिए थे. It was very early days, so I wasn't very used to creating videos. I think that was the time when I was going from writing my story to, making a video of my story, telling my story through audio visual. So after like some 100 takes, I did create a fairly nice video. Now that I look back, it's a very bad video, but then tab ke liye sahi tha. So I uploaded the video. I started sharing it with people. And when you raise funds, I'll cover it later. Crowdfunding में आप क्या क्या techniques use करते हैं? The techniques I used that worked for me. And then I went to Korea. Then I completed my undergrad. I went back to Pakistan. I worked in an NGO for 4 years. And then I was ready for masters. So I knew कि मुझे masters में jump नहीं करना. I wanted to take my time, try out some jobs, and see where I am actually really interested in. So I took my time. I did some jobs, and I found out that I want to do my masters in this area. And then I started to look for programs. And I applied very seriously to 2 programs. दोनों में हुआ था, एक में scholarship था, एक में नहीं था. So obviously, the one with scholarship, Erasmus Mundus, was my top priority. Also, it was the subject that I had worked in for 4 years. It was the topic that I wanted to continue to work on. So it was like a no-brainer for me. I had to go for it. So I only applied for 2 programs. I didn't apply for like 10, 15 programs. And why did I do that? Uske pros and cons we will discuss. If I don't discuss, please someone ask in the questions, because it's important, like why should you apply for 1 or 2 and put all of your energy into someone, or you should be broad. So you should apply 10, 15. I've seen people applying for 50 and getting 5 offers. So दोनों काम करते, but it depends on you as a person, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे साथ में. So yeah, now I'm here in right now I'm in Belgium. You can see weather is getting cold here already. So my first semester was in Croatia. Second semester was in Lithuania, and then my third semester is in Belgium. And yeah, after here, let's see where it goes. So it's been an absolute like amazing journey. मेरे लिए ये program ऐसा है कि I wanted to do business when I'm done with masters. So this was a program that gave me the opportunity. और इस program के लिए आपको with an idea apply करना था. So for this program, beauty ये थी कि आपको कोई एक specific subject matter
होने की जरूरत नहीं है. You can come from any background and then you can, apply for this with a business idea, with a good personal statement, and you have to show some, good academic record where you show that I put in the effort and, I can achieve things. So, yeah, good to be here. To quickly walk you through the process, जैसे आपका पहला slide था कि what are the key, important चीजें जो आपको करने की जरूरत है. So most of the students here are undergrad और आप masters students हैं, aspirants हैं. Can we see, like, if you are undergrad, can you raise your hand so we can see what is the अंडरग्रेजुएट है, मैक्सिमम अंडरग्रेजुएट है मैम. Okay, okay. So undergraduate है तो from, and you are applying for undergrad. Yeah, you will be applying for masters. जी मैम. Well, अभी आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे मेजोरिटी या अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे होंगे? मेजोरिटी मास्टर के लिए और शायद चाहता हूँ Okay. जो बैचलर के लिए भी कर. ओके, ठीक है. सो नाउ इट्स मोर रेलेवेंट क्योंकि अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो आई विल बी एबल टू गिव यू लाइक फ्रेश आइडियाज. सबसे पहले प्रोसेस आपको ये करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि पढ़ना क्या है. So these are very basic. That's why I'm gonna go faster because you know all of these things, right? So आपने अपना फील्ड आइडेंटिफाई करना है, या एक या फिर दो, आप 5 भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच एनर्जी आप एफर्ट डाल सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अंडरग्रेड स्टडीज कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा टाइम क्लासेस, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स में चला जाता है, तो यू हैव टू टेक आउट दैट टाइम. उसके बाद फिर आपने करना है, वंस यू डिसाइड कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, मुझे आईटी की तरफ जाना है, मुझे डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है, यू हैव टू डिसाइड योर फील्ड. सो यू इट्स लाइक आपका नेरो हो जाता है. फ्रॉम दैट आपने ये डिसाइड करना है कि फुल स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप, या आप even you are good with no scholarship. There are so many students जो मैं इधर मिली हूँ and in other EU countries as well जो पाकिस्तान से आए, जो self funded है. So आपका approach different होगा. If you are someone who has to go 100% scholarship के लिए, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि अगर आपको प्रोग्राम नजर आता है, आप पहली चीज जो उसमें चेक करेंगे, does this offer fully funded scholarship? नहीं करता है तो आप उसको उस टाइम रहने दो. आप उसको कहें नो मैटर हाउ good the program, how relevant, या फिर ये है कि you are in love with the program, and then we figure out कि उसको फिर आपने कैसे करना है, कि आपके अल्टरनेटिव फंडिंग. जैसे मुझे कोरिया जाना था तो मैंने अल्टरनेटिव सोर्स निकाला, कोई सोल्यूशन निकाला कि स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या हुआ, आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग. सो पहले वो. उसके बाद आपने ये करना है, एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बना ले अपना. यूजुअली आई डू दैट विद जिनके साथ मैं काम करती हूँ, आई कॉल इट ATS. तो उसको आप एक्सेल में बना सकते हैं. उसमें सिंपली आपका ये है कि आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आपने उसके बाद एक कॉलम में आपने क्राइटेरिया लिखना है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, क्या क्या करना है, डेडलाइन कब है, एप्लीकेशन ओपन कब है, डेडलाइन कब है, स्कॉलरशिप है या नहीं है तो कितना परसेंट है. तो फुली फंडेड को अलग रखे शीट में, पार्शल को अलग रखे, और जो बिल्कुल सेल्फ फंडेड है उनको अलग रखे. एंड देन आप उसमें देखें कि फुली फंडेड है या नहीं है, और उसमें आगे फिर देखें कि रिसर्च आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है. उसके आगे एक कॉलम लिखे जैसे पीपल हु कैन हेल्प यू आउट. जैसे आई एम समवन, आप इरेस्मस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इरेस्मस में यू कैन से अनीला, और मेरा लिंक्डइन आप लिंक डाल सकते हैं. सब व्हेन यू नीड यू कैन रीच आउट टू मी. या फिर आप ये करते हैं, आप बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनीला जो कि बिजनेस स्पेसिफिक है, तो आप मेरा लिंक डाल दें कि पोटेंशियल जिसको आपको मेंटर कर सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है. सो दैट्स फर्स्ट. पहले अपना सिस्टम डेवलप करें. सो दैट्स वेयर वंस यू डिसाइडेड ये मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है, देन आपने जाना है ATS की तरफ, और ATS में आप अपने टॉप, आप उस लिस्ट को डेवलप करना स्टार्ट करें. टेक अराउंड 2 to 3 months. I initially did this as a research assistant for my professor. जब मैं अंडरग्रेड में थी तो मैं पार्ट टाइम जॉब में प्रोफेसर को असिस्ट करती होती थी.
So she was applying for, PhD program. So she had this amazing system design. तो वहां से मुझे ये आइडिया आया कि you can actually do really well अगर आपका proper organized system। तो आप उस सिस्टम को क्या करें, 2-3 महीने लगा लें। मेरा बेसिकली काम ये था, रोज में 1 घंटा स्पेंड करती थी टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, और उसके सारे डिटेल्स निकाल के मैं शीट में डालती थी ताकि उसको रिसर्च ना करना पड़े। सो आई वाज गेटिंग पेड फॉर इट। फ्रॉम देयर आई लर्नड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल हु आई हेल्प्ड इन फैमिली एंड फ्रेंड्स की इसको कैसे डेवलप करना और किस तरह यूज करना है। सो उसको 2-3 महीने दे दे, एंड देन एवरी वीक उसको अपडेट करे विद the the programs that interest you। अभी उसको आप वो ना करें, रैंक ना करें, बट जो आपको लगे अच्छा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इधर फुली फंडेड है, ये हो सकता है, वो सारा। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर आप ये करें कि उसको अभी आपने एनालाइज करना है। एनालाइज में आपका मेन जो क्या कहते हैं, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कौन से मेरे टॉप 5 है। ठीक है, टॉप 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 20 प्रोग्राम्स होंगे, आप 20 के 20 में अप्लाई करना नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। सो टॉप 5 आपने पिक करना है, उसके बाद टॉप 10 पिक करना है, टॉप 15, टॉप 20। सो लेट्स से आपके 20 है, आप 50 भी हो सकते हैं। सो 20 हो गए, उसमें से एक प्रोग्राम आपका जैकपॉट। ठीक है, जैकपॉट ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। व्हेन यू सी द प्रोग्राम, आपके दिल में एक फीलिंग, एक इमोशन आ जाती है। द प्रोग्राम आई वाज अप्लाइंग फॉर, व्हेन आई सॉ दिस प्रोग्राम आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज माय प्रोग्राम, एंड आई जस्ट कुडंट वेट टू स्टार्ट द प्रोग्राम। सो इट वाज लाइक डिजाइन्ड फॉर मी। तो फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि व्हेन आई डिस्कवर्ड द प्रोग्राम इसका लिंक एक्सपायर हो चुका था। सो आई वेटेड 1 ईयर। द नेक्स्ट ईयर एज सुन उसका एप्लीकेशन ओपन हुआ, आई कुडंट फाइंड द एप्लीकेशन, तो मैंने उसको ईमेल किया उनकी टीम को कि लास्ट ईयर आई कुडंट अप्लाई बिकॉज आई कुडंट एक्सेस द लिंक, सो इस साल आई एम रियली इंटरेस्टेड, तो मुझे वो लिंक भेज दे। तो उन्होंने मुझे ईमेल में एप्लीकेशन लिंक भेज दिया, वहां से मैंने अप्लाई किया। I really wanted the program. I was dying to get in, so I think I applied within like few hours, and I was ready for the program. Few hours क्यों? It's not recommended कि आप एक 3-4 घंटे में आप application पूरा करें। मेरे लिए highly relevant था। मेरे लिए the program was like it was made for me. So अगर आपको ऐसा program मिलता है तो that's your jackpot, that's your top program। उसमें ये होता है कि आपका work experience भी उधर का है, आपके स्टडीज भी उसी से रिलेटेड है, आपने उससे रिलेटेड कोई रिसर्च भी किया है, आपके अचीवमेंट्स भी उससे रिलेटेड है, आपका फ्यूचर जो आपने करना है, कुछ करना है उसमें, वो भी उसी से रिलेटेड है। एंड देन द प्रोग्राम के जो आपका करिकुलम देख के आपको दिखता है कि वाओ, लाइक ये मॉड्यूल्स मुझे कल स्टार्ट करना है। एंड देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आगे क्या होना है, आपको समझ आती है कि ये करिकुलम में तो ये बिल्ड होगा, फिर ये होगा, एंड देन इट्स फुली फंडेड। देन आपका कंट्रीज इरेस्मस में आप चूज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू गो विद इट। बट सम ऑफ द कंट्रीज आपको देख के लगता है, कुछ लोग कंट्रीज चूज करते हैं इरेस्मस पे, विच इज ऑल्सो इट्स स्मार्ट, बिकॉज आप छोटे छोटे कंट्रीज में इरेस्मस करते जाते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती जितना बड़े कंट्रीज में करते हैं। तो फॉर मी इट वाज लाइक रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीज आई वांटेड द प्रोग्राम। दैट्स योर जैकपॉट। उसको आप हाईलाइट करें, और उस प्रोग्राम को आपको पहले दिन अप्लाई करना है, और उस प्रोग्राम का आपने ये करना है, पूरा वेबसाइट पढ़ना है आपने, जो लोग पहले सेलेक्ट हुए हैं वो पढ़ना है, उनको सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो करना है, उनके स्टोरीज देखना है, वो किस तरह के स्टोरीज फीचर करते। फॉर मी आई हैड फॉलोड द प्रोग्राम फॉर अ ईयर। मुझे एग्जैक्टली पता चल गया था कि उनको क्या चाहिए। सो आप कैसे गेज कर सकते हो? वो ऐसे करे कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका प्रोग्राम अगर किसी को फीचर करता है अपने सोशल मीडिया पे या अपने वेबसाइट पे, सो गो एंड रीड व्हाट दे से अबाउट द स्टोरी। उस स्टोरी के अंदर वो क्या ज्यादा बताते हैं? वो ये ज्यादा बताते हैं कि लेट्स से रिसेंटली आर सोशल मीडिया पे एक वो स्टोरी फीचर हुई, लाइक कि एफी फियोना कमिंग फ्रॉम Kenya is helping out rural Kenyan women have access to economic opportunities. So आप उसमें सीधे सीधे आपको पूरा पूरा पता चलता है कि if you are
a woman entrepreneur who is working for underserved countries, coming from developed, underdeveloped, yeah, developing context market, and you are trying to make a difference and you have the potential to make a difference. चार क्राइटेरिया। अगर आपने उस एक स्टोरी को एनालाइज किया कि इसने इस स्टोरी का हाईलाइट क्या है, फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, सेकंड लाइन क्या लिखा है, पोस्टर पे क्या गया, ठीक है, नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम सेज, इफ द प्रोग्राम सेज हमें इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज से, और वो नीचे फीचर क्या करते हैं, वो फीचर ये करते हैं कि XYZ coming from Kenya making a difference for rural Kenyan women in earning this, तो you आपको सीधे पता चल जाता है what are they looking for and what will they feature। तो इसलिए आप उनके क्या कर, आप उनका सोशल मीडिया फॉलो करना स्टार्ट करें उस प्रोग्राम का, आप उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स कौन है उनको फॉलो करना स्टार्ट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड देम आउट। अगर आपको एक स्टूडेंट भी मिल जाए तो उस स्टूडेंट को भी आप निकाल के फॉलो करें, तो उसके कनेक्शंस में कभी उसके पोस्ट में उनके कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे, उनके मैनेजर्स आ जाएंगे। उससे ये होगा कि ये नहीं होगा कि आप उनको रीच आउट करेंगे, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं अप्लाई करना चाहता या चाहती हूँ, तो आपको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रोग्राम, दे विल नेवर केयर कि मुझे ये बंदे ने मैसेज किया था तो इसका कोई चांस बनता है, ओनली बिकॉज ऑफ द मैसेज। बट आपको ये समझ में आएगा कि प्रोग्राम ढूंढ क्या रहा है, एंड आप 4 घंटे में अप्लाई करेंगे, 1 साल बाद मेरी तरह इट विल बी वे इजियर। लाइक लिटरली अगर आप 1 साल आपने एक प्रोग्राम को ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कीनली, आपने उनके लोग के साथ इंटरेक्ट किया, यू आर देयर फॉर लास्ट 1 ईयर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मेरे साथ कनेक्ट किया फॉर एमी, वो बीच बीच में महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने बाद कोई सवाल भेजते हैं, कुछ पूछते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो हमारे पोस्ट पे कमेंट करते हैं, मैं देखती हूँ उनको जो मेरे इनबॉक्स में, आई ऑल्सो सी देम एंगेजिंग विद अदर पीपल, प्रोफेसर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। सो समटाइम्स दे ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप 1 साल पहले से, तो आप जब इंटरव्यू में अपीयर होंगे सो द प्रोफेसर नोज यू ऑलरेडी। तो ये ट्रिक भी है, in addition to you getting to know the program really well, जिसमें आपका पर्सनल स्टेटमेंट आपका स्ट्रेंथन हो सकता है, आपको पता है कि पर्सनल स्टेटमेंट में क्या बेचना है, कौन सी स्टोरी बेचनी है, बट ऑल्सो यू नो कि ये प्रोफेसर के साथ आपका इंटरव्यू हो गया, उनको पता है अच्छा ओ वी हैड टॉक देयर, आप ये है वो है, तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स यू। दैट्स योर जैकपॉट प्रोग्राम। मैं इसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपने एफर्ट डालना, दिस इज इट जो प्रोग्राम आपका है। उसके अलावा जो आपका टॉप 5 है, आपने फिर उनको, आपने प्रोग्राम को उसी तरह, बट इतना इंटेंस आपको नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यू कैन मैनेज द एनर्जी। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, टॉप 10 होगा। सो सी अगर आपका मेरी तरह का जैकपॉट प्रोग्राम है तो मे बी डोंट गो फॉर 10, इन्वेस्ट योर एनर्जी 2 साल भी लगा के एक प्रोग्राम में। अगर आपका यू आर डाइवर्स इंटरेस्ट है, आप 3-4 वो ट्राई करना चाहते हैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर 10 applications. I've seen people doing 50 applications and getting 5 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज लाइक कैम्ब्रिज टाइप यूनिवर्सिटीज से या ड्यूक यूनिवर्सिटी टाइप यूनिवर्सिटीज से ऑफर्स आए हैं। तो दोज आर एक्चुअली द पीपल हु कैन सिट पुट देयर हेड डाउन फॉर आवर्स। अगर आप वो लोगे जो कि दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं, साल लगा सकते हैं, 50 एप्लीकेशंस हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, तो कर राइट। सो आपका वंस ये सिस्टम डेवलप होता है, देन आप वहां से, देन यू सी द रिक्वायरमेंट्स, यू गेट इन टच विद पीपल, फिर आप प्लान करें उसको। प्लान ये आपको होगा कि आपने अगर उसके रिक्वायरमेंट में पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी और आपका एप्लीकेशन है, कुछ में रिसर्च होता है, जैसे स्पेशली साइंस एंड रिसर्च फील्ड में वो आपसे रिसर्च भी मंगवाते हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम इन अ वे कि पर्सनल स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने पिछले लास्ट वीक मैंने जो एक वेबिनार कराया उसमें भी मैंने कहा कि देर आर टू मेनी टैलेंटेड पीपल इन द वर्ल्ड, यू ऑल आर हाईली हाईली टैलेंटेड, आप सारे हाई क्वालिटी पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हो फॉर एनी प्रोग्राम, एंड आप जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं। सो उसमें आपने टैलेंट वाइज compete कर रहे हैं, राइट। सो आप इतने सारे टैलेंट के साथ compete कर रहे हो, अच्छे ग्रेड्स ठीक है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस काउंट करेगा। द वन थिंग दैट विल पुट यू असाइड, क्योंकि एक प्रोग्राम इरेस्मस का 20
मैक्सिमम उठाता है, मोस्ट प्रोग्राम 12 से 14 उठाता है. सो इमेजिन 10,000 एप्लीकेशंस, इन 12 लोग सिलेक्ट होते या 14 सिलेक्ट होते, तो उसमें आपका जो एक फैक्टर होगा जो आपको आइडेंटिफाई करेगा, यू नो इट विल पुट यू, आपका यूएसपी जो कहते हैं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम द can you guys hear me? It's been really blind because आप लोग के cameras off है. I don't see any reactions. Chat भी नहीं आ रहा है, तो please let me know if it's. Are you guys following? जी मैम, ये असल में चैट बॉक्स अभी ऑफ किया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा ना फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होने लग जाती है, और माइक भी म्यूट किया हुआ है और कैमरास भी म्यूट किए हुए हैं, ठीक है. क्योंकि बाल So लोग guys, ज्वाइन I'll कर take. लेते हैं लेकिन वो होती। सही है, मैं 3 more minutes लूंगी and then we'll do full on Q&A for 30 minutes. So hopefully, we'll be able to. काफी मेन चीजें जो मैं बताना चाह रही थी कवर हो गई है. पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. पर्सनल स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी योर दी विनिंग फैक्टर. क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि देर आर टू मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड. यू ऑल आर हाईली टैलेंटेड, और आप जैसे बहुत ज्यादा है, तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है. अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? पर्सनल स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इन अ वे कि एक आपका सीवी होता है, एक आपका पर्सनल स्टेटमेंट होता है. आपको हर एप्लीकेशन में आपका सीवी मांगते हैं वो लोग. एप्लीकेशन के अंदर भी आपने सारा वर्क एक्सपीरियंस डालना है, एजुकेशन बैकग्राउंड डालना है, सारे डिटेल्स डालना है, वो ऑलरेडी है. जो गलती मेजोरिटी करते हैं वो ये करते हैं कि वो सारे अचीवमेंट, सारा एजुकेशन सब ले जाके पर्सनल स्टेटमेंट में भी डालते हैं. सो योर पर्सनल स्टेटमेंट इज नॉट योर सीवी. इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो अगर आपने सीवी में सब डाला है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेयर नाउ यू टेल योर स्टोरी इन अ वे that you make yourself, you set yourself apart from other candidates, कि आप यूनिक कैसे, आपकी यूनिक स्टोरी क्या है, आप उसको स्टोरी से विन करें. सो योर पर्सनल स्टेटमेंट इज योर स्टोरी. पीपल विल डिसएग्री विद मी, बट इट इज योर स्टोरी. और स्टोरी ऐसे नहीं कि आप स्टोरी के थ्रू देन यू टेल योर achievements, you tell your educational background as well, you tell your goal as well. और पर्सनल स्टेटमेंट पे एक फुल वेबिनार एक और हो सकता है, लाइक आई डिड अ 1 hour टॉक ऑन पर्सनल स्टेटमेंट, तो अभी पूरा मैं कवर नहीं कर सकूंगी. I have a YouTube video as well, जिसमें you guys can go back and watch and then send me you know questions about personal statement. But it is your story. So ये गलती कभी ना करे कि आप पर्सनल स्टेटमेंट में अपने अचीवमेंट्स को नोट करते जाए and at the end of the day you are literally repeating the same thing as your CV. तो आपका विनिंग फैक्टर नहीं होगा, जबकि वो बंदा विन करेगा जिसका सीवी तो ऑलरेडी है, but then he or she tells a really inspiring, a beautiful story through their personal statement, right? So then that gives you the chance to, put yourself aside, set yourself. मुझे आज वर्ड नहीं आ रहा, आप खुद को क्राउड से निकाल के साइड पे रखते हो कि ये मैं हूँ. ठीक है. सो आई होप वी आर एबल टू, फ्यूचर में कोई पर्सनल स्टेटमेंट या आप लोग की कोई ऑलरेडी टॉक होगी नहीं हुई है, तो आई शेयर अ यूट्यूब लिंक जिसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट. छोटी वीडियो है बट इट गिव्स अ जिस्ट, एंड देन उसको देख के आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर इफ यू वांट अनदर सेशन इन द कमिंग वीक्स व्हेन यू आर रेडी टू, अभी टाइम है, आप स्टार्ट करेंगे, वैसे भी एप्लीकेशंस जनवरी से ओपन होंगे, so then we can do one more session. So yeah, application आपका, then you start with your personal statement first. Find one person, maximum two. Two इसलिए कह रही हूँ, one is the best क्योंकि 10 लोगों के 10 opinions होते हैं, so then they will confuse you. तो एक बंदा या खातून ढूंढे जो आपको गाइड करे थ्रू आउट योर प्रोसेस, और आप उनको पर्सनल स्टेटमेंट भी एटलीस्ट 2-3 महीने पहले स्टार्ट करें, एंड यू कीप सेंडिंग द ड्राफ्ट. सो एटलीस्ट 5-6-7 ड्राफ्ट्स में आपका पर्सनल स्टेटमेंट बन जाएगा. बट द वन हु इज रिव्यूइंग योर पर्सनल स्टेटमेंट, नाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक टाइम. आप एटलीस्ट उनको 2-3 हफ्ते दे दें, क्योंकि obviously I hope you are reaching to someone who is busy in their lives and who are doing something with their lives, right? तो फिर वो टाइम लेंगे, वो आपको
फीडबैक देंगे, आप उसको चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, क्राफ्ट करेंगे। 2 पर्सन्स में क्यों जाए? उसमें ये सिचुएशन है कि रिसेंटली आई वाज हेल्पिंग समवन जो एक ऐसे फील्ड में अप्लाई कर रही थी जिसका जो टेक्निकल साइड है वो मुझे नहीं समझ आती थी। सो एवरीवन यू नो लाइक व्हेन यू विल बी अप्लाइंग फॉर साइंस बैकग्राउंड्स, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू मच विद द टेक्निकल पार्ट, but I'll be able to help you with the storytelling part कि ये है लेकिन इसको स्टोरी में हम किस तरह बता सकते हैं, you know, how do you tell this as a story? So उसमें मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि I'll help you build the story, but you find someone from this particular field जो आपको फीडबैक दे, जो आपने टेक्निकल बातें की है, जो आपने वोकेबलरी यूज किया, जो आपने टर्म यूज किया है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो, दे मेक सेंस, दे आर रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री, दे यू नो इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पे आपको फीडबैक दे, तो कुछ यू नो आपको टेक्निकल फीडबैक देंगे जिसको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज कहते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आप यू नो इफ यू रीच आउट टू समवन हु इज गुड एट स्टोरी टेलिंग, क्राफ्टिंग योर स्टोरी, बट यू ऑल्सो हैव टू गेट योर फैक्ट्स राइट, तो वो फिर आप दो ले, या यू नो यू रीच आउट टू 3 पीपल। आजकल जीपीटी भी बहुत सबकी हेल्प करता है, तो बट जीपीटी शुरू में हेल्प ले ले, व्हेन यू आर रियली यू नो उसको आप रिफाइन करते जा रहे, देन यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्टेक्स्ट। सो जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट समझाना भी आजकल आसान हो गया। यू हैव टू से यू नो आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में यासीन से, यासीन में ये कॉन्टेक्स्ट है, ये चैलेंजेस है, और इस तरह तो आपने इस यू नो बंदे के लिए पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, नोट फॉर समवन जो कराची में you know रहता है, रहती है, not for someone from Lahore or not for someone from outside of Pakistan. So you have to tell every small detail to GPT if you want your first draft to be done by GPT. But first bad draft खुद करे, GPT को दे दे, हेल्प उठा ले, रिफाइन करे, फीडबैक ले ले। GPT के अंदर बहुत सारे जो स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग आपके बॉट से आप वो यूज करें, एंड देन उनको फिर यू नो वहां से स्टार्ट करें। बट देन ऑब्वियसली जीपीटी क्रिएटेड कंटेंट स्मेल्स फ्रॉम माइल्स अपार्ट, राइट? सो वो जीपीटी क्रिएटेड कंटेंट कभी शेयर ना करे, हेल्प ले ले, बट यू बी द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। So yeah, then continue to refine your personal statement, continue to refine your सीवी एप्लीकेशन जल्दी स्टार्ट करे ताकि आप डेडलाइन मिस ना करें, या फिर पाकिस्तान में यू नो एवरीडे हमारे इंटरनेट के मसले होते, सो लास्ट डे तो चांस ही नहीं है, एटलीस्ट अ वीक बिफोर आप प्लान करें सेफली, क्योंकि कभी कभी फॉर डेज वी डोंट हैव इंटरनेट, राइट? सो वो आप सेफली उसमें अप्लाई करें, देन गो टू योर सेकंड प्रोग्राम, योर थर्ड प्रोग्राम। आपका a lot of questions you know people ask about आपका रेफरेंसेस, रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन रेफरेंसेस भी रेलेवेंट उठा ले, और रेलेवेंट एंड थोड़े हेवी रेफरेंसेस उठा ले। ये नहीं कि आपने किसी ऐसे कोलीग का रेफरेंस दिया हो यू नो हु आर फ्रेंड्स विद यू, सो उन्होंने आपको लिखा बट उसका इतना वेट नहीं होता कंपेयर टू समवन हु गिव्स अ रेफरेंस ऑन योर बिहाफ, हु इज वे हाई अप इन द लैडर, जिनके साथ आपने डायरेक्टली या पार्शली यू नो डॉटेड लाइंस में काम किया। सो इस तरह से देन आपका प्रोफेसर, बट वो प्रोफेसर जिसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया है, तो कन्वीनियंस ना देखे, इफ इवन इफ दैट प्रोफेसर हेटेड यू, रीच आउट टू द प्रोफेसर और आप उससे रेफरेंस मंगवाए, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसने पढ़ाया है, वो प्रोफेसर नहीं जो आपको बहुत पसंद करता था या करती थी, एंड देन उन्होंने बिल्कुल एक इररिलेवेंट सब्जेक्ट पढ़ाया। सो या कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, आप अपने ट्रैकिंग सिस्टम में आप चेक करते जाए, आपका आगे वो जो आपका कलर कोडिंग होती है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो आपके कुछ रेड में होंगे, कुछ येलो में होंगे, बट जो ग्रीन होता जाएगा as you move along the dates, and you start in September research, September October research, अक्टूबर में आप नवंबर दिसंबर आप अपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें, पर्सनल स्टेटमेंट्स वगैरह स्टार्ट करें, जनवरी के एंड तक आपकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी डॉक्यूमेंट्स, एंड फेब में जन मिड से मोस्ट एप्लीकेशंस ओपन हो जाते, कुछ क्लोज भी हो जाते, तो देख ले, एंड देन बाय मई एंड आपका मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि देन आपकी सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर वीजास, तो तब तक आपका प्रोसेस खत्म हो चुका होगा मई, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंटरव्यूज।
So that's a topic for another day. I think that's 36 minutes. I tried my best कि हम 30 minutes में complete करें. So let's do Q&A. आप Q&A कर रहे हो तो please ऑडियो ओपन करें या फिर प्लीज चैट ओपन करें so we are able to see the feedback that's coming from people. They are bored, they are curious, they are tired, they are learning something. और फिर अगर आप वीडियो मैम ऑन कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा. मैम जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेस करता जाएगा, अनम्यूट होता जाएगा. ठीक है, वीडियो भी ओपन करे तो अच्छा लगे. चलें ठीक है, वीडियो भी ओपन कर लीजिएगी. अच्छा मैम, मेरा ठीक. क्वेश्चन है पहला. हेलो. जी जी. आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात की है कि एमएस के लिए मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन करें तो कैसे करें. अब मैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट है ना. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँ. तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है उसमें हर ब्रांच की वो होती है. जैसे आप सिविल की या इलेक्ट्रिकल की इनकी अलग अलग होती है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब इंजीनियरिंग की एक ही होती है. और अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बंदा चूज करे तो उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे या उससे इरेलीवेंट होंगे, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका हर फील्ड में इक्वली अप्लाई होता है, राइट. नो मैटर आप जिस भी फील्ड में है, आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल साइंसेस टू डिजिटल प्रोडक्ट्स. तो आपके उसके अंदर रह के, जैसे अभी बहुत सारे कोर्सेज कॉमनली आपके सामने आ जाती है, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट. इट्स अ वेरी निश कोर्स, वेरी स्पेसिफिक कोर्स. और आप अगर इंटरेस्टेड है टू गो टूवर्ड्स कोई डिजिटल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को आप मैनेज करें, तो दैट मेक्स सेंस फॉर यू विद इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. आप मूविंग फॉरवर्ड आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या आपने जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, विच वुडंट मेक सेंस. क्योंकि एक तो है कि जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज है, जैसे दैट पीपल डू एंड देन बाद में जाके वो प्रोजेक्ट मैनेज कर लेते हैं, तो वो आपका अप्लाई होता है. बट देन देयर इज निश. तो आप अपना निश ढूंढे, उसके अंदर आप सिंपली गूगल करके देखे या फिर रीच आउट टू पीपल इन योर इंडस्ट्री जो पहले कर चुके हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपके लिए कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो आई कांट गो इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फॉर एवरी फील्ड. तो आप अपने फील्ड में किसी भी फील्ड से आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉरवर्ड आप स्टडी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक एंड मैनेज एनी प्रोजेक्ट. तू ये देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे. देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद कर. काइंडली अपने माइक अनम्यूट रखें. म्यूट रखें. अच्छा मैम, इसी वजह से मैं चाह रहा था कि जो माइक है म्यूट रहेंगे. अब मैंने सबके अनम्यूट कर दिए हैं, तो मे भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो तो काइंडली इसको इग्नोर या नो कीजिएगा. वरीज, या आई एम फाइन विद दैट, कोई बात नहीं. माइक सबके अनम्यूट है, तो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अनम्यूट कर सकता है अपना माइक. प्राइवेसी हटा दी गई है. Excuse me, ma'am. I have to make an announcement. Yeah. Link of the participation certificates have been shared in the chat box. Please fill it out so that you can get your certificates. Thank you, ma'am. You can continue. Okay, I can't see the chat either, so can people send you messages? Can you turn on the chat so I'm able to see the feedback from people and also the questions? ओके मैम, चैट भी ऑन है. Okay. मैम मैंने आपसे Anyone? ये क्वेश्चन जी जी. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था. आपने स्टार्ट की डिटेल जब स्टार्ट की थी ये वेबिनार, आपने बताया था कि आपने कोई एप्लीकेशन या पता नहीं अपनी कोई प्रोफाइल बनाई थी जिसमें आपने डिफरेंट कॉलम्स से के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के कौन सी फुली फंडेड है. प्लीज उसे थोड़ा दोबारा बता देंगे डिटेल में. तो ये एक बेसिक एक्सेल शीट जिसको हम एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं. So इसमें because you are going to apply for a lot of programs and it's going to be a 7-8 months process, sometimes 1 साल का process होता है, तो आप उसमें आपको एक organized way में करने की ज़रूरत पड़ती है. So to be able to properly track and stay on the track and then don't miss deadlines, not miss requirements,
हमने एक सिस्टम बनाया था initially by my professor, but then I replicated that in my life as well. उसमें आप simply Excel में जाके आपका जो मेन, आप इवन जीपीटी को बोल दे कि मेरे लिए एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बना के दे दो, तो आपको बना के देगा, जिसमें आपका प्रोग्राम का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, आपके प्रोग्राम का क्राइटेरिया, आपका रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी, रिसर्च रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, रिसर्च प्रपोजल मंगवाते कुछ, तो दैट आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डे, एप्लीकेशन एंडिंग डे, उसमें फिर जो मैंने अपने लिए पर्सनली एडिशन ये किया था कि आई हैड कॉलम्स कि इस प्रोग्राम में अगर मुझे पर्सनल स्टेटमेंट रिवाइज कराना हो, इस प्रोग्राम में मुझे या फिर एडवाइस के लिए किसी को मैसेज करना हो, या समवन जिसको मुझे फॉलो करना हो, तो मैं किसको करूँ। एंड देन उनके मेरे पास लिंक्डइन डिटेल्स थे, तो आई लव लिंक्डइन, आई एम ऑलवेज ऑन लिंक्डइन, सो आई रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, चाहे मुझे एडवाइस चाहिए हो, मुझे उनको फॉलो करके उनको और समझना हो और जानना हो, आई इंटरेक्ट विद देयर पोस्ट अ लॉट, कमेंट और इस तरह की चीजें वो। एंड देन आपने फिर कुछ आपका होता है, जैसे डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट प्रोफेसर्स आपको रेफरेंस देंगे, तो वो कौन से प्रोफेसर से आपने रीच आउट करना है, उनका ईमेल अगर नहीं है तो आपने किसी दोस्त से मंगवा के वहां पे नोट कर ले, और इस तरह से देना आपने, उसके आगे फिर आपका टाइम लाइन होता है। सो यूजुअली ये होता है कि स्पेंड गुड मंथ और 2 अपना रिसर्च करते हुए, और उसको सिंपली फिल करते जाए। फिल करने के बाद फिर आपने ये करना है कि उसको रैंक करना है कि टॉप 10, टॉप 1 आपका कौन सा है। जैसे आई टॉक्ड अबाउट योर जैकपॉट प्रोग्राम, एंड वन ऑफ माय मेंटर्स, अगेन आई एम अ गुड, वेरी गुड मेंटी, मैं हर चीज को रेप्लिकेट करती हूँ, सो ही taught me how to do networking. So, आपका jackpot, आपके top 5, and then rest of the people. But then I replicated that in applying. So, मेरा jackpot program ये है, बाकी 4 ये है, बाकी के 10 हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो इट्स ओके। सो इसलिए वो आपको हेल्प करता है। देन उसके आगे आप ये भी लिखेंगे कि फुली फंडेड है, पार्शली फंडेड है, सेल्फ फंडेड है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप फुली फंडेड का शीट अलग रखें, पार्शली का अलग और सेल्फ का अलग रखें, so you are able to prioritize, and then you can continue to work on that। बहुत खुद को एग्जॉस्ट ना करें। आई वर्क विद सो मेनी पीपल, आप गूगल करने लगते हैं तो गूगल गिव्स यू लाइक 1,000 million रिजल्ट्स, तो उसमें आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट स्टार्ट फ्रॉम, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स, क्योंकि फॉर एनी वन ऑफ अस इट्स नॉट वेरी इजी कि आप पीकेआर में पीकेआर लाके यूरो में पे करें, तो इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। तो उसमें देखें कि फुली फंडेड आपके ऑप्शंस कौन से, देन पार्शियल, देन सेल्फ। या सो इट्स एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो अपना आप खुद बना सकते हैं, या All right, ma'am. हेलो अस्सलाम Thank you. वालेकुम। Thank you. हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैम? आपका माइक बंद है मैम। हेलो यस नासिर, यू आर ऑडिबल। मैम आपका माइक बंद है। माइक बंद है मैम। आदिल भाई, मैम का माइक अनम्यूट कर दें, या आपके एंड से शायद कोई इशू आ गया। हेलो एक मिनट नासिर, अपना माइक अनम्यूट करें, रिजॉल्व करते हैं हम इशू। माइक म्यूट करें आप अपना।
आदिल भाई के इंटरनेट का इशू है। जो और ऑर्गेनाइजर हैं वो मैम का माइक काइंडली अनम्यूट कर दें। कर रहा हूँ। Hmm? 164 plus n. Can you guys hear me now? Yes, ma'am. Okay. Okay, good. So we'll get back to your questions, okay? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैं सवाल मेरा ये था कि अभी हम फाइनल ईयर में अपने, तो
आपने जैसे कहा कि जनवरी में एप्लीकेशन शुरू होती हैं एरास्मस मंडेस की और मई में ख़त्म हो जाती हैं, तो हम ड्यूरिंग द डिग्री अप्लाई कर सकते हैं या डिग्री रिक्वायर्ड है? ड्यूरिंग द डिग्री अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं बाई। वैसे आपका टर्म कब कंप्लीट होता है, मई में, जून में? ऑलमोस्ट जून में आई गेस। ऑलमोस्ट जून में। सो आप बगैर डिग्री के अप्लाई कर सकते हैं। यस, आई थिंक आपको कुछ डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ बताना होता है कि आई इन द फाइनल सेमेस्टर, वो आपको स्कूल दे देता है। और ये जस्ट कुछ प्रोग्राम्स में आपने सिर्फ कहना होता है कि आई इन द फाइनल सेमेस्टर, एंड देन उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है। सो देन यू हैव टू गिव योर डिग्री। तो बाय दैट टाइम आपका डिग्री आ जाएगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अप्लाइंग इन देयर फाइनल सेमेस्टर्स। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे आपने बोला पर्सनल स्टेटमेंट और लेटर ऑफ मोटिवेशन एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों? एक ही चीज है, वो डिफरेंट, वो नाम अलग अलग यूज करते। कुछ लोग आपको मोटिवेशन लेटर मंगवाते, कुछ लोग पर्सनल स्टेटमेंट मंगवाते। सो इट्स लाइक द सेम थिंग। पर्सनल स्टेटमेंट में भी आप यही कहते हैं कि मैं कौन हूँ, what I've done, what are my goals and where I want to go, and how your program can help me reach those goals. And motivation letter में भी यही होता है कि mainly why am I applying to this program. So ओके मैम, उसमें थैंक शायद यू। या वाई थोड़ा ज्यादा वो होता है, लेकिन दे आर ओके द सेम थिंग्स। इवन एलओआई जो आपको कहते हैं, या फिर आपका एक और नाम देते हैं उसको, एक और नाम है, दे आर द सेम थिंग्स। ओके मैम, थैंक यू। तो किधर की पाकिस्तानी है ना, पागल इधर की कहीं की ये नीचे। Okay, Rishakul, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम माय क्वेश्चन इज़ कि मैं बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में। तो अभी तो हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, लाइक फाइनल ईयर। तो हम होप सर्टिफिकेट की बेस पे या फिर इन चीज़ों की बेस पे भी, मतलब क्योंकि जनवरी में एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी तो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि अगर आपका मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ना हो जो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एरास्मस मंडेस के लिए, बट आपके कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हों या इतने हों कि आप उनको शो कर सकते हो, तो क्या वो उसके लिए कंपेंसेट कर सकता है? पहले तो आई थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन जो अभी आंसर हुआ है, राइट? तो फाइनल सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाय द टाइम यू आर रेडी टू फ्लाई, आपकी डिग्री और कुछ ट्रांसक्रिप्ट तो आ ही जाता है। तो यस, यू कैन अप्लाई इन योर फाइनल सेमेस्टर। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि आई डोंट थिंक कंपनसेट कर सकता इन अ वे कि व्हेन यू शो को करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ प्रोग्राम तो रिक्वायर करती है, यू हैव टू डू सम कम्युनिटी वर्क। वो इसलिए रिक्वायर करती है कि समटाइम्स some programs require you, they want to see कि आप नए जगह में जाएंगे, so how will you know mingle with people, how will you adjust there, how will you, बिल्कुल नई कंट्री है, आप बिल्कुल नए लोगों के बीच में, तो आपका वो कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि यू कैन टॉक टू न्यू पीपल, यू कैन एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट, यू हैव डन दिस बिफोर। आप फ्रेंडशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। इट ऑल्सो शोज आपका लीडरशिप स्किल्स बहुत सारा। सो काइंड ऑफ लाइक यू, दे डोंट वांट टू सी यू हैव अ कंफर्ट जोन। अगर हमको उनको कहीं भी लगा कि आपका कंफर्ट जोन है, तो देन वो थोड़ा हेजिटेंट होंगे, दे विल ऑलवेज गो फॉर समवन। जैसे मैंने बोला ना कि टैलेंटेड लोग बहुत ज्यादा है लाइक दुनिया में, सो दे विल उस टैलेंट को टॉप अप करना होता है आपको एप्लीकेशन में। और वो टॉप अप हम अपने पर्सनल स्टेटमेंट में भी आप यही स्टोरीज बताते हैं कि मैंने ये को करिकुलर किया है, आप में इस तरह से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। सो इफ यू वॉच दैट वीडियो, जो मैंने अभी लिंक शेयर किया यूट्यूब वीडियो में, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ फॉर्मेट की, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, आप किस तरह वो स्टोरी बताते और उस स्टोरी में आप टर्निंग पॉइंट दिखाते कि मेरी लाइफ में अगर कोई ये चैलेंज आए तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो इफ यू शो कि मैं टॉप टियर स्टूडेंट हूँ, यू नो आई एम ऑलवेज ए प्लस एंड देन आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज, तो थोड़ा सा आपका ये दिखता है कि आप थोड़ा सा सोशली आप मर्ज नहीं है, आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया हुआ है आपने, यू हैवंट पुट योरसेल्फ आउट देयर इन अ
आपने अपने कंफर्ट जोन को पुश नहीं किया हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉप अप जितना कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को करें. सो आपका एजुकेशन एकेडमिक आपका रिकॉर्ड तो एक पीस है, एकेडमिक के साथ को करिकुलर उसको टॉप अप करता है. को करिकुलर ऑल्सो सेज अ लॉट अबाउट, अगर आप ये कहती है कि मुझे आपने फील्ड का जो नाम दिया था, कौन सा फील्ड, सॉरी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. सो आप मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये भी कहती है कि मैंने इस पर्टिकुलर उसमें वॉलंटियर किया इवेंट में, बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और कुछ एक छोटे से उससे भी रिलेटेड था बिकॉज आपको इंटरेस्ट थी. तो दैट मुझे वैलिडेट करता है ना. आपसे मुझे ये बताते मुझे इंटरेस्ट है तो आई डोंट नो हाउ. या फिर आप ये कहती कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप किया, तो फिर वो मुझे ये बताता है कि ओ या मोर कमिटमेंट, मोर एक्शन, यू आर नॉट ओनली अबाउट थ्योरी. फिर आप ये कहती है कि मैंने खुद ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, या मैंने खुद ये अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया, या मैंने खुद ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया क्योंकि आई फेल लाइक कि ये गैप है, या मैंने ये रिसर्च प्रपोजल डिजाइन किया, इस रिसर्च के लिए मैंने अप्रूवल लिया, फंडिंग उठाई, ये मैंने रिसर्च किया. सो ऑल दीज थिंग्स जो आपके आउटसाइड ऑफ योर कोर्स वर्क आप जाके करते हैं, तो देन दे एक्चुअली देन वो आपका फिर ये होता है, आपका क्लास यहाँ तक था, आप टॉप थे अपने एकेडमिक में, फिर वो यहाँ चला गया. तो जो ये टॉप था और इसने सिर्फ एकेडमिकली हाई अचीव किया है, तो यू ऑलवेज हैव लाइक एन अपर बार. तो इसमें मेक श्योर कि कुछ ना कुछ करे, छोटा सा भी कुछ किया है ना, किसी इवेंट में वॉलंटियर किया है, उसको आप बढ़ा चढ़ा के कि क्या सीखा, क्यों किया, कैसे किया, तो वो सारा आप बता दे. एंड देन कोर्सेज, यस एक्सटर्नल. मैंने कहा कि इसका पता यार मैम कितनी प्यारी है ना. मैंने कहा कि सोचो कमेंट सेक्शन में भेजना मैम आप कितनी उसी को देख देख के लिए आए हो. कल को मैंने फॉर्म फिल किया, बोला तो आगे कहते हाँ मैंने कितनी प्यारी. I think that's a different talk. So yeah, one more thing, अगर आपने extra courses किए हैं, that also adds to your commitment. So I wouldn't say कि आपके courses आपको कुछ top up नहीं देंगे, वो आपको top up देंगे in a way कि वो ये देखेंगे आपके अंदर कि अपने particular एक curriculum को छोड़ के आपने extra effort किया है to learn something. So that also shows your effort. तो उसको make sure करें, आप उसको बता दें जितने additional courses आपने किया है, that also shows कि she has taken an extra step other than जो 100 लोग अप्लाई कर रहे, आपने थोड़ा ज्यादा किया है. तो जो चीजें आपके एकेडमिक से टॉप अप करती है उनको ऐड करती जाए. एंड देन आपका एकेडमिक, आई वुड से कि it's important but it's not everything. So a lot of people जो मैंने देखा, even in my case, I've not been like the top key student, like A plus, like I've been A most of my life. So A is okay, हमारा A 76 70% to 80%. So I've been there for a long, and that works for you. So काफी वो दिखाता है कि आपको चीजें आती है. 90 100 आजकल के बच्चे हैं, तो why not, right? So I mean, speaking of university, obviously आपका GPA होगा. So if your GPA is above 3, you are good, क्योंकि आपका requirement होता है बेसिक का, आपने इसके ऊपर होना है. So above 3 रखे उसको, above उससे ज्यादा, जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट बिलो ना रखे. So I hope that answers your question. So go for volunteering, go for internships, go for जो भी आपको practical experiences दे दे. और मैम अगर Let's हमने take a किसी few more. स्कूल में टीचिंग की है या फिर किसी एकेडमी में टीचिंग की है या कोई ऐसा सोशल वर्क किया है, तो या यूट्यूब चैनल अपना है या कोई राइटिंग की है किसी मैगजीन में जो कि हमारी हाँ, फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं. वो भी करे. आपके फील्ड से रिलेटेड हर चीज होना जरूरी नहीं है ना. वी हैव अ लाइफ, राइट? सो हम कभी कभी डाइवर्स चीजें करना ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ आपकी डायनेमिक और आपकी स्ट्रेंथ दिखाती है. एंड देन आप वो ये भी दिखाता है कि यू आर नॉट वेरी रिजिड, कि आप ब्रेक हो जाए. you are flexible, you adjust to environment, and something about एक चीज थोड़ा सा ज्यादा आपको पता है किसी और चीज के बारे में, लेकिन at the end of the day how you say it, तो आपने उसको उसके साथ रिलेट करना है. कि आपने एक आर्टिकल लिखा है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके इस फील्ड से, तो उस आर्टिकल में आप कौन सा एक्सपीरियंस बताएंगी जो आपको एक एज दे दे आपके एप्लीकेशन में. So you have to be very creative when you are writing your
पर्सनल स्टेटमेंट और आप वो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं जो इररेलेवेंट है कम्प्लीटली, बट आप उनको बहुत मज़े से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वेंट टू कोरिया, आई गॉट अ चांस टू स्टे इन अ टेम्पल। ठीक है, आई स्टेड देयर फॉर 4 months and it was a beautiful experience but completely irrelevant to my field, you know, टेम्पल में रहना बिजनेस से क्या वो करता है। but I share the story everywhere and in that story मैं उस story को किसी भी एंगल से प्रेजेंट कर सकती हूँ। sometimes resilience, sometimes your openness, your curiosity, you know, like I am a Muslim, so आपको बुद्धिज्म में कहाँ से इंटरेस्ट आई, you know, like pushing your comfort zone to see, oh, let's see what it is there, you know, what's out there. So आपकी curiosity, आपका openness to different cultures and different experiences and different religion, क्योंकि आप यहाँ पे आते हैं तो you sit in a class with, you know, like all kinds of religions, right? So 10 religions आपके mainly 5-6 different types होते हैं। then you have people जो agnostic होते हैं, you have people जो spiritual होते हैं, you have people जो atheist होते हैं। so you have to be open to ideas, you have to be, you know, respectful to different वो तो जब आप ऐसी story बताते हैं which is completely irrelevant to your field but it shows your adventure spirit, it shows your curiosity, it shows that you are brave, you can, you know, put yourself out there, do something very different, very unusual. It also shows you are open to inclusivity, diversity, to different cultures. You are curious to know. So आप जिस इस तरह exchange programs में जाते क्यों है? For exposure, right? So if you are going for an exchange program and you say a story like this, so obviously it gives a very different kind of personality to your reader. So इस तरह की वो चीजें, but you have to be able to then craft it very nicely. Yep. मैम आप मास्टर्स की स्टूडेंट हैं तो आप इस बारे में बेटर गाइड कर सकती हैं कि अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना है मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए तो क्या रिसर्च पेपर होना या पब्लिकेशंस होना मस्ट है, और अगर है तो कितना मस्ट है, मतलब कितने चांसेस उससे बढ़ जाते हैं, या अगर आपका अभी तक फाइनल ईयर तक कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि मेरी नहीं हो सकती स्कॉलरशिप, या फिर आप अभी भी कर सकते हैं? कुछ प्रोग्राम्स रिक्वायर करती है, जैसे मैं आपको बता रही थी मैंने सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, तो मेरे एक प्रोग्राम में रिसर्च वाज रिक्वायर्ड, दूसरे प्रोग्राम में प्रपोजल वाज रिक्वायर्ड। तो रिसर्च मेरे पास था और लेकिन मेरे पास बहुत सारे रिसर्च वो थे क्योंकि हर सेमेस्टर में मैंने सोशल साइंसेस पढ़ा है तो वी डू रिसर्च ऑल द टाइम, लेकिन आपने फिर पिक करना होता है योर बेस्ट रिसर्च जो एटलीस्ट आपका 40, 50, 60 पेजर हो and you have a good you know, आपने उसको थोरो रिसर्च किया और आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे पास कोई 60 पेजर रिसर्च पेपर था जो मैंने कोलैब किया था विद अ ग्रुप। सो आई सबमिटेड दैट एंड देन उन्होंने मुझे रिप्लाई किया ईमेल में कि आप इसमें से वो सेक्शंस हाईलाइट करके भेजें जो आपका कंट्रीब्यूशन है रिसर्च पेपर में। सो देन आई हाईलाइटेड दो सेक्शंस एंड मुझे वो अपने जो ग्रुप है मेरा ग्रुप उनसे फिर वो उन सब ने भी हाईलाइट करके भेजना था। सो इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, सिर्फ मैं नहीं भेज सकती थी। सो आई रीच्ड आउट टू माय ग्रुप और उन्होंने भी वो मेरे जो कंट्रीब्यूटेड सेक्शंस थे मैंने फिर उन्होंने मुझे यही कहा, फ्रेंड्स थे तो उन्होंने कहा कि आप खुद हाईलाइट करके भेजो हम वो ईमेल कर देंगे, बट इन फॉर्मल सेटिंग्स आपका शायद आपकी वो अपॉर्चुनिटी ना हो, सो यू हैव टू यू नो रियली मेक श्योर कि आपका ग्रुप भी वही हाईलाइटेड भेज रहा है ताकि वो कॉन्ट्रास्ट ना आए। तो वी सेंट द ईमेल एंड देन उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया मेरा। उसमें कोई 6-7 राउंड्स थे उसमें सिलेक्शन में मेरी सिलेक्शन हो गई थी फाइनली, बट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। सो अगर मेरा रिसर्च पेपर नहीं होता या इफ आई वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई कि ये सेक्शंस मैंने कंट्रीब्यूट किया है तो दे वुड ड्रॉप मी फॉर श्योर। दूसरे में प्रपोजल देना था तो यू हैव टू यू नो कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, सो फिर उसमें भी फिर आपने बना के देना होता है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट में आप नहीं उतरते तो आप पहले ही स्टेज में ड्रॉप हो जाते हैं। सो डोंट स्किप एनीथिंग इन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम अप्लाइंग, उनकी रिक्वायरमेंट में रिसर्च है। Okay, Naseem Kasha, you can ask your question. Assalamu alaikum, ma'am. This is Akasha Naseem.
एंड आई एम अ 7th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ BS Zoology। मतलब मैंने अभी 6th सेमेस्टर कंप्लीट किया है। 6th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है और 7th की नहीं है, मतलब 7th अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मेरा ये है कि मैं यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी गई हूँ रिसेंटली, जो है स्प्रिंग बैच में। और मेरा प्रोफाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे तो। बट रिसर्च जो है ना हमारे मतलब इंस्टीट्यूट में, वो रिसर्च वगैरह इतनी नहीं करवाई जाती है। तो ना मेरे रिसर्च पेपर्स हैं और ना मेरा कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू लाइक, करवाते हैं रिसर्च लेकिन 7th सेमेस्टर से और 8th सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर्स में करवाते हैं। बट मैं चाह रही थी कि जैसे मेरा 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जो है अभी अप्लाई कर दूं। अब जब एप्लीकेशंस ओपन होंगी तभी। तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि मुझे 1 साल वेट करना चाहिए कि मैं अपने कोई रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश कर लूँ उसके बाद अप्लाई करूँ, या जो है इसी साल अप्लाई कर देना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आइल्स जो है इसके लिए लाजमी होता है क्या? और अगर लाजमी होता है तो वो मतलब क्या आप सजेस्ट करेंगे किस टाइम में वो दिया जाए? थैंक यू सो मच। तो इसमें एज आई सेड कि आपका एप्लीकेशन जो ट्रैकिंग सिस्टम होगा, रिसर्च और ये सारे रिक्वायरमेंट्स हर उसके लिए डिफरेंट होती है, राइट। समटाइम्स आइल्स के अंदर भी वो आपको बताते हैं कि आपने कौन सा वाला करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कि आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर उन्होंने रिसर्च पेपर कहा है तो यू हैव 1 ईयर कि आप अपना कुछ बिल्ड कर सकते, राइट। सो आई वुड फोकस, अगर आपका टॉप प्रायोरिटी वो प्रोग्राम है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। सो आप फोकस करें रिसर्च पे, ग्रुप ज्वाइन करें। हमारे लिए तो ये होता था कि आई वुड go to a professor and I would request them to keep me as research assistant. And I was a research assistant to 3 professors for 2 years. तो semester में वो change एक के साथ for a longer period, but semester बाद वो change हो जाते थे। So that helps you a lot। आपका बहुत ज़्यादा, आप खुद जाके बात कर ले तो most of the time आपके professors are willing, क्योंकि आप free में काम करके दे रहे, तो what do they have to lose, right? So वो कर ले। Try to work, focus on building your research paper. IELTS का भी ये है कि it will vary from program to program. I had a requirement, जो first मेरा जो program था उसमें they had specifically said कि ये वाला करना है। So मैंने कोई बिल्कुल लास्ट मिनट अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था आइल्स का, बट देन यू नो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 1 साल में आपका वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो बहुत जल्दी ना करें, ऑब्वियसली डू इट क्लोजर टू द क्लोजेस्ट पॉसिबल टू योर एप्लीकेशन डेडलाइन, एंड देन या program by program देखें, but don't jump in when you feel you are not ready and the requirements are not there. So हर program research require भी नहीं करता, हर program IELTS भी require नहीं करता। अभी जिस program में मैं हूँ उन्होंने IELTS require नहीं किया। That it was a plus। मैंने ऐसे ही ऐड किया था, but it was not a requirement। None of my friends जो यहाँ पे है उनने IELTS किया। So I would say कि make a good plan। आपका प्रोफाइल वैसे ही strong है, and then you've already been on a program, तो आपको पता है कि you know how to tell your story, how to achieve, you know, avail an opportunity। तो उसमें आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगर research is important, so spend that year। This is my personal suggestion। जल्दी अप्लाई करे तो एक्सपीरियंस होगा, हुआ तो ग्रेट, नहीं हुआ तो यू विल लर्न समथिंग। नेक्स्ट ईयर आप और भी बेहतर अप्लाई कर सकती है। तो ऑल द बेस्ट। या Ibrahim Thank Mohammed, you you can so ask. much. Can we Assalamu take alaikum, 2 ma'am. more Hi, ma'am. and then we close? Hi, ma'am. So, Yep. I'm in my first year mechanical engineering undergrad student. So I wanted to know about dual degree programs and like semester extend programs. I have a lot of time to prepare for masters, so uski prep ke liye. But do you know कि ma'am dual degree programs और semester exchange programs क्योंकि आपने mention भी किया था एक, so उसके बारे में आप बता सकते हैं? Semester exchange programs are almost everywhere। Most of the time Asian जो इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारा, मैं जिस पे गई थी वो जीके स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया स्कॉलरशिप। तो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से ओपन नेट, पाकिस्तान से हर जगह से स्टूडेंट्स जाते हैं। Akasha just mentioned U grade
it's one of the biggest exchange programs जो undergrad में पाकिस्तान से लोग जाते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. People go to Singapore, China, they go to France. France में एक up साइंस पो नाम की एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, जिसमें साइंस रिलेटेड बच्चे एक्सचेंज के लिए लाइक बहुत ज़्यादा जाते हैं. सो लुक इट अप. और इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं ना जो कि मैंने बाकी स्टूडेंट्स को जाते देखा है, पाकिस्तान से मैंने किसी को साइंसेस पो में जाते हुए नहीं देखा. तो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन कम होता है. नॉट एवरीवन नोज कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करती है, जबकि यू ग्रेड का एवरीवन नोज कि ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करती है, तो कंपटीशन भी हाई हो जाता है. इसी तरह पीपल गो टू इटली, पीपल गो टू जर्मनी अ लॉट. इनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. सो कभी कभी कंट्री उठा के देख लो, कभी कभी ना यूनिवर्सिटी उठा के देख लो. सो डू योर रिसर्च, यू विल बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फिर आपके वर्ल्ड बैंक के फेलोशिप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. सो इफ यू हैव इनफ टाइम, जब तक आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर ले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि कहाँ से आप एक्सपोजर उठा सकते हैं. तो सर्च नहीं किया क्योंकि या इट्स साइंसेस एंड इट्स पो. somehow मेरे लैपटॉप में इंटरनेट काम नहीं कर रहा. can you search sciences po and tell me if it works? Paris, सेम स्पेलिंग है. Yes, ma'am. या साइंसेस पो फ्रांस अगर आपको मिल जाता है तो आप वो इसमें चैट में ऐड कर देना. दिस इज लाइक वन ऑफ दी लाइक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे बहुत जाते हैं, पब्लिक हेल्थ के बच्चे मैंने देखा है, मेरी बहुत फ्रेंड्स भी गई हुई है. बट मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, फ्रॉम कंबोडिया, पाकिस्तान से आई डोंट थिंक सो फार कोई गया है दैट आई नो. सो या इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको आप चेक कर. ओके Let's मैम, do आपकी one आवाज में or डिस्ट्रैक्शन two. आ रही है, सही समझ नहीं आ रही है आपने क्या वर्ड बोला था. Science is for, I think someone got it. Can you put it in the chat? Okay, Mohammed Sayan, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको आवाज आ रही? जी जी. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो स्पेसिफिकली एरास्मस मंडस रिलेटेड, कि मैम एरास्मस मंडस में यानी कितने स्टूडेंट्स वो मतलब जो एक ये पर ईयर आता है यानी जो प्रोग्राम, उसमें मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, और अगर लो सीजीपीए है तो मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके चांसेस क्या होते हैं, या उन किन फैक्टर्स पे उनकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट कर सकती है. और आइल्स का ये पूछना था कि आइल्स का मैम 2 इयर्स वैलिडेशन होती है जितना हमने रिसर्च किया था. और या टू, मुझसे गलती हो गई होगी, आई थिंक 2 years होती है. यस. जी मैम, तो इस बारे में कुछ बता दें, ये 2-3 क्वेश्चंस थे. आप रिपीट कर ले क्वेश्चन क्विकली. मैम ये था कि कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं यानी एरास्मस ओके. मंडस के लिए हाँ. हर साल, और अगर लो सीजीपीए है तो आप उसको किस तरह स्टैंड आउट कर सकते हैं अपने सीवी या मोटिवेशन लेटर पे वर्कआउट करके. मोस्टली स्टूडेंट्स तो 14, कुछ साइंस में मेरे ख्याल में कम होते हैं बैचेस में, 12 to 14 होते हैं. हमारा बैच वाज सपोज टू बी अराउंड 20, बट देन वीजास रिजेक्ट हो जाते हैं. तो हमारे पिछले दोनों बैचेस में हमारे साथ 14, पिछले वाले बैच में मेरे ख्याल में भी 14, इस साल वाला आई एम नॉट श्योर कितने आए. सो यूजुअली 6-7 लोग रिजेक्ट हो जाते तो वो 20 तक सेलेक्ट कर लेते. तो या इट डिपेंड्स अगेन ऑन द प्रोग्राम. तो उसमें फिर अगेन वही है, आप अपने एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट करें. 7 महीने 1 साल कहीं नहीं गए, लगने हैं आपके, तो आप देख ले कि हर प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने सेलेक्ट होते हैं, आपका डेडलाइन क्या है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करती है. सो इट विल, हर प्रोग्राम का बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. सो आवर प्रोग्राम डिडंट इवन नीड आइल्स. तो बहुत ही इजी प्रोग्राम था, रिसर्च भी नहीं रिक्वायर्ड था.
बट रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड था। तो अगेन प्रोग्राम बहुत आसान होता है तो एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आइल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते तो थोड़ा उधर ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। GRE SAT बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते तो उधर फिल्टर आउट हो जाते। समटाइम्स डोंट opt फॉर द इजी प्रोग्राम्स, अनलेस इट्स लाइक योर जैकपॉट। जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम को देख के ना आपकी पूरी बॉडी में फील होता है कि दिस प्रोग्राम इज हेड डाउन फॉर मी, हैंड्स डाउन फॉर मी। तो अगर वो प्रोग्राम नहीं है तो डोंट स्किप समथिंग ओनली बिकॉज उन्हें GRE SAT, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक कोट है कहीं पे कि आप जितना ऊपर जाते जाते हो वहाँ पे कंपटीशन कम होता जाता है, क्योंकि कम लोग रह जाते हैं। नीचे नीचे कंपटीशन ज्यादा होता है। इजी प्रोग्राम ज्यादा एप्लीकेंट्स, ज्यादा कंपटीशन। हार्ड प्रोग्राम वो बहुत सारे पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। या एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम, तो आप अपना रिसर्च कर ले। और मैम CGPA से रिलेटेड क्या है कि अगर लो CGPA CGPA यूजुअली प्रोग्राम्स का मिनिमम होता है, दे नेवर आपका बस मिनिमम हो गया स्कॉलरशिप्स के लिए। आई थिंक इट्स 2.5 2.6, वहाँ से ऊपर आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यूजुअली 3 से ऊपर यू विल बी वेरी इजीली, आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। 3.2 3.1 3.4 3.5। आपका 2.5 के बिलो थोड़ा मुश्किल होगा, बट इट्स नॉट unless program hard cut नहीं करता। जैसे again in my case I'm giving a lot of my examples because obviously, तो हमारा प्रोग्राम ऐसा था कि they were focused more on who you are as a person, आपका बिजनेस आइडिया कैसा है, आप कितने एक्शन ओरिएंटेड हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है। तो ये एक अलग ही प्रोग्राम था जिसमें आपका CGPA बिल्कुल मैटर नहीं करता था। they didn't care। मुझे अभी भी याद नहीं, इनिशियली मैंने उनको पता नहीं ट्रांसक्रिप्ट दिया हो, मेरा डिग्री अटेस्टेड नहीं है अभी तक। तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे कि दे सी हु यू आर एज अ पर्सन, वो बंदे को चूज करते। कुछ अगेन यू गाइज आर साइंस बैकग्राउंड, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है अपने GPA मेंटेन करना होता। बट अगेन सेइंग दैट GPA इज नॉट योर प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आप एवरेज है, अच्छे स्टूडेंट है। फेल करते तो ऑब्वियसली, बट एवरेज स्टूडेंट है, यू आर गोना बी फाइन। समटाइम्स आप अगर बिल्कुल ही बिलो एवरेज भी है तो आई वुड बी एबल टू अचीव समथिंग इवन। अभी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये कह रही कि मेरा GPA अगर बिल्कुल ही लो होता, लोवेस्ट भी होता, तो आई वुड बी एबल टू फाइंड अ प्रोग्राम, क्योंकि देयर आर वेज। एकेडमिक सब कुछ नहीं होता, एकेडमिक इज अ पार्ट ऑफ इट, एंड देन प्रोग्राम्स में सेलेक्ट होने के दूसरे वो भी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। यू जस्ट हैव टू नो द प्रोग्राम रियली वेल, नो योरसेल्फ रियली वेल, प्रेजेंट योरसेल्फ रियली वेल, और आप एक स्ट्रेटजी से अप्लाई करें तो यू विल बी फाइन। तो आई एम नेवर द GPA पर्सन, आई विल, मुझे याद भी नहीं होगा GPA क्या था, कितना था। तो या डोंट वरी अबाउट योर GPA। Okay, Risha Gul, Any you can. one last question? This is the last question. Risha Gul, you One can last ask. question से पहले I've shared YouTube link, please मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें because I get too many questions, और मैंने finally ये सोचा है कि कुछ मैं वीडियोस बना के डालूं ताकि थोड़ा सा like you can't respond to 80-100 questions, so वो हेल्प करेंगी दूसरे लोगों की भी। So please, if you liked आज का वेबिनार तो मुझे सब्सक्राइब करें, इट विल सपोर्ट माय चैनल। एंड ऑल्सो मैंने वो वीडियो लिंक शेयर किए तो थोड़ा पर्सनल स्टेटमेंट पे, आज हमारे पास टाइम नहीं था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच कैन विन यू स्कॉलरशिप्स एंड एप्लीकेशंस। तो वो वीडियो देखे, गिव मी फीडबैक, सेंड मी क्वेश्चन, सो आई विल बी एबल टू create more videos around the topic. Yeah, please, Arisha. Ma'am, I will must subscribe your channel, and I will also recommend other people to subscribe your channel. Thank Okay, ma'am. you. You're welcome. Thank you. Ma'am, I have I've seen, on that note, I've seen so many people sending me their personal statements, and मैं कहती यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, रिव्यू कर दूंगी, they are like गायब। Sure, ma'am, कहा sure. चलो ठीक। Thank you जी, Ma'am, बोले। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि इरेस्मस मंडेज के लिए आर्ट्स मैंडेटरी है या फिर टॉफल या डुलिंगो भी हम प्रेफर कर सकते हैं? और आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दें अगर, ताकि हमें फ्यूचर में कोई अगर Yeah, प्रॉब्लम हो please.
कोई क्वेरीज होते हैं तो हम आपसे कांटेक्ट कर लें सो और लिंक्डइन गाइड कर लें कि जीआरई भी मैंडेटरी होता है या गेट मैंडेटरी होता है, मतलब इरेस्मस मंडेस के लिए मतलब आपको जीआरई स्कोर करना पड़ता है और टॉफल जीआरई मोस्टली मेरे ख्याल में जीआरई यूएस वाला प्रोग्राम क्या है, फुलब्राइट के लिए जीआरई एसएटी मैंडेटरी होते मोस्टली इरेस्मस आई हैवंट सीन एनी जो आपको जीआरई रिक्वायर करता है और एसएटी भी, सो आई हैवंट सीन दोज बट अगेन मोस्टली डिपेंड करेगा। मोस्ट ऑफ इरेस्मस प्रोग्राम्स लोगों को पसंद भी इसलिए क्योंकि इनका टोफल आइल्स जीआरई वगैरह इतने नहीं होते रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू जो आपके फुल ब्राइट का बहुत एक लंबा सीन होता है लाइन ऑफ वो रिक्वायरमेंट्स। तो फिर भी देख ले इन योर प्रोग्राम हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम नहीं होंगे, अगर है तो देन आपको करना पड़ेगा बिकॉज विदाउट दैट यू नो आप फिर compete नहीं कर सकते एंड देन मोस्ट लाइकली आपका एप्लीकेशन अर्ली स्टेज में ड्रॉप हो जाएगा। तो माय प्रोग्राम डिन वो रिक्वायर आइल्स, कुछ प्रोग्राम में फिर वो आपको वही बताते हैं कि डुओलिंगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। मैंने कुछ यूएस के प्रोग्राम्स में देखा था कि वो डुओलिंगो एक्सेप्ट करते थे, तो फिर again it will depend on the program. Sorry I don't have like a specific answer जो कि आपका copy paste हो जाए, but वो vary करेगा from program to program. Okay, ma'am, and please share your LinkedIn profile so that we could contact you afterwards. Yes, so mostly I काफी लोगों ने मुझे add किया है already, but here is my LinkedIn. मुझे अगर आप कुछ भेजते हैं फॉर रिव्यू तो गिव मी सम टाइम, क्योंकि अभी भी पिछले उससे काफी पेंडिंग है, तो आई टेक, इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी स्टार्ट करें। इवन टू योर प्रोफेसर्स इफ यू रीच आउट टू देम मुझे अगले हफ्ते चाहिए, इवन 2-3 हफ्ते बाद चाहिए, तो उनको टाइम नहीं होता, तो उनको रीच आउट करे कि गिव देम लाइक अ मंथ और 2, तो वो स्लोली आपके लिए कुछ अच्छा लिख के भेजे, और कभी कभी या लिख के उनको दे दे, वो साइन करके आपको भेज देंगे, सो दे डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क। आई एडेड दैट लिंक, मैंने ऐड किया है ऑन चैट में, आपको मिल गया? और फिर yeah, this is the channel. I hope to stay connected. Thank you very much, you guys, for amazing audience. Can you guys hear me? Sub mute चले गए. I hope we are able to do this again. उसमें please थोड़ा सा conversational रखते हैं इसको, and we unmute each other ourselves. We see each other. तो थोड़ा वो feel है. Do let me know if you are more interested in a particular topic जो कि specific हो, तो we will be doing one more session. I would highly recommend our personal statement पे एक session करा दे, whoever is, I think Muhammad is leading the group, so you can arrange one more session. Thank you guys. Okay, ma'am. Thank you Happy so end much of for Sunday. giving us. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. By the way, ma'am, sorry for the misjudgment with your name. वो No हमें worries. मिसजजमेंट हो गई थी फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम एंड फ्रॉम माय साइड टू के आपके नाम नीला शहीन की जगह गुलाम भी साथ कहीं से ऐड हो गया, लेकिन बाय द वे आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय साइड मैम एंड फ्रॉम मैनेजमेंट No साइड. worries. No worries. No worries. Thank you so I much, had ma'am. Thank fun. you so much. Such a great turnout. मजा आया. Thank you very much. You were a great audience, and let's stay in touch. Let's stay in touch on LinkedIn, and hopefully we will do another session someday, and also Inshallah. my channel. Yeah. Okay, ma'am, inshallah. In closing, I would like to extend our deepest gratitude to our speaker for sharing her wealth of knowledge and valuable insights with us today. We are truly grateful for the guidance that you have provided us, ma'am. Thank you so much. And thank you so much for all the candidates and all the students who have joined us. And joined us with heartful gratitude, we draw the curtains of today's enlightening session. Until we meet again, may you remain safe and well. Thank you so much, ma'am, for taking our session. And thank you so much, guys, for keep contacting with us. Allah Hafiz, ma'am.
अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Thank you, ma'am.